اسلام آباد میں فائرنگ کا واقعہ۔ علاقہ تھانہ شہزاد ٹاؤن میں پرانے دشمنی پر فائرنگ سے 4 افراد قتل۔ مقتولین کی گاڑی پر ملزمان کی جانب سے فائرنگ کی گئی۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے ناکہ بندی کر کے ٹیمیں تشکیل دے دی گئیں۔ ڈی پی او اور پولیس نفری موقع پر موجود ہے۔ فائرنگ سے جاں بحق ہونے والے افراد کی لاشیں ہسپتال منتقل کر دی گئیں۔ راولپنڈی اشیاء خورنوش میں جعل سازی کرنے والے عناصر کے خلاف پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائیاں جاری۔ راولپنڈی میں 50 کلو چائنا نمک، جہلم میں 87 لیٹر کولڈ ڈرنکس تلف کر دی گئیں۔ چکوال میں 73 لیٹر کولڈ ڈرنکس، 15 لیٹر دودھ اور 8 کلو پتی تلف کر دی گئی۔ خفیہ اطلاعات پر راول ٹاؤن میں 2 ممنوعہ چائنا نمک کے بیوپاری پکڑے گئے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نوٹسز کے خلاف ورزی پر سپلائر کو 50,000 روپے جرمانہ کیا گیا۔ غیر معیاری اجزاء کے استعمال پر 2 کیٹرنگ یونٹس کے خلاف کارروائی کی گئی۔ چکوال میں زائد المیعاد کولڈ ڈرنکس اور پتی کی فروخت پر 7 سٹورز مالکان کے خلاف کارروائیاں کی گئی۔ جہلم میں ممنوعہ اور غیر معیاری اشیاء کے استعمال پر مختلف فوڈ پوائنٹس کو جرمانے کیے گئے ہیں۔ راولپنڈی تھانہ صادق آباد کے علاقے ڈھوکالا خان میں ڈکیتی مزاحمت پر فائرنگ۔ ملزمان کی فائرنگ سے شہری زخمی، بے نظیر بھٹو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ملزمان نے شہری سے اسلحہ کی نوک پر موبائل فون اور نقدی چھیننے کی کوشش کی۔ ڈکیتی واردات کے دوران مزاحمت پر ملزمان نے شہزاد پر فائرنگ کر دی۔ فائرنگ کے بعد ملزمان موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ خبر شامل کرتے ہیں عارف والا سے ملک محمد اکرم کی رپورٹ۔ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں، جرائم پیشہ عناصر ان کی سرپرستی کرنے والے رسا گیروں کے خلاف بلا تفریق کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ عوام کے جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ہے۔ میاں ظفر اقبال ڈھڈی کی پریس کانفرنس۔ ڈی پی او پاکپتن طارق ولایت کی ہدایت، ڈی ایس پی ملک طارق اوان کی سربراہی اور ایس ایچ او تھانہ رنگشا ہاشم خان کی نگرانی میں اے ایس آئی میاں ظفر اقبال ڈھڈی نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے کی، جبکہ راہزنی، نقب زنی کی درجنوں وارداتوں میں ملوث 4 ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے لاکھوں روپے مالیت کے موٹر سائیکل اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا ناجائز اسلحہ برآمد کر لیا، جبکہ بدنام زمانہ منشیات فروش کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے تقریباً 1.5 کلو چرس برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیا۔ اے ایس آئی میاں ظفر اقبال ڈھڈی نے کہا کہ تھانہ رنگشا کے علاقے جرائم پیشہ اور سماج دشمن عناصر سے پاک کر کے کرائم فری بناؤں گا۔ منڈی بہاؤدین 40 دن پہلے لاپتہ ہونے والا بچہ بازیاب، پولیس کی طرف سے گھیرا تنگ ہونے پر ملزمان اغوا ہونے والے بچے کو بازار میں چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے جاری ہیں۔ منڈی بہاؤدین کے محلہ مصطفیٰ کے رہائشی محمد عرفان نے 40 دن پہلے تھانہ پھالیہ میں درخواست دی تھی کہ 15 سالہ بچہ اس کا فیضان گھر سے قرآن پاک پڑھنے گیا تھا، جبکہ گھر واپس نہیں آیا۔ کافی تلاش کے بعد اس کا کوئی پتہ نہ چل سکا، جس پر تھانہ پھالیہ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ ایس ایچ او تھانہ پھالیہ آصف رانجھا نے ٹیم تشکیل دی، جس نے مختلف جگہوں سے سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کی اور اس درس میں جا کر تفتیش کی جہاں بچہ پڑھنے گیا تھا۔ کلو ملنے پر مختلف جگہ پر چھاپے مارے گئے، جس پر مبینہ طور پر ملزمان نے محسوس کیا کہ ان کے خلاف گھیرا تنگ ہو رہا ہے، جس پر انہوں نے 40 دن بعد بچے کو مین بازار میں چھوڑ دیا اور خود فرار ہو گئے۔ پھالیہ پولیس نے اطلاع ملنے پر فوری طور پر بچے کو اپنی کسٹڈی میں لیا، جبکہ بچے کی جسمانی حالت کو دیکھتے ہوئے بچے کے والدین کو اطلاع دے دی گئی۔ ایس ایچ او آصف رانجھا نے اپنی نگرانی میں بچے کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل منتقل کر دیا۔ اس موقع پر ایس ایچ او آصف رانجھا کا کہنا تھا کہ ملزمان بہت جلد قانون کے کٹہرے میں ہوں گے۔ منڈی بہاؤدین گیپکو ملازم کو پیٹی بھائیوں کی بڑی کرپشن، بے نقاب کرنا مہنگا پڑ گیا۔ کو ملازم شاہد نعیم کے گھر پر بااثر ملزمان کی فائرنگ، فون پر جان سے مارنے کی دھمکیاں۔ پولیس بااثر ملزمان کے سامنے بے بس، 2 دن گزرنے کے باوجود ایف آئی آر درج نہ ہو سکی۔ اہل خانہ، اہل علاقہ شدید خوف و ہراس میں مبتلا۔ متاثرہ لائن مین کے میڈیا سے بات چیت۔ ایف آئی اے گجرات سرکل نے منڈی بہاؤدین کے گیپکو ملازم شاہد نعیم کی نشاندہی پر پرائیویٹ گودام پر چھاپا مار کر 50 الیکٹرک میٹر، 2 کرنٹ ٹرانسفارمر، پی وی کیبلز کے 5 بنڈل، 3 ایلومینیم کنڈکٹر سمیت دیگر سامان برآمد کر لیا، جس کی قیمت لاکھوں میں تھی، جبکہ گیپکو ملازم سید شاہ حسین نقوی کو گرفتار کر لیا گیا۔ بڑی کرپشن پکڑے جاتے ہی اس میں ملوث بااثر گیپکو ملازمین نے نشاندہی کرنے والے گیپکو لائن مین پر عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ متاثرہ لائن مین شاہد اقبال نے میڈیا کو بتایا کہ اتنی بڑی کرپشن کی نشاندہی کرنے پر افسران کی جانب سے حوصلہ افزائی کی بجائے مجھے ہیلے بہانوں سے تنگ کیا جا رہا ہے۔ میری تنخواہ بند کر کے انکوائری لگا دی گئی، جبکہ بااثر ملزمان کی جانب سے میرے گھر پر فائرنگ کی گئی ہے، مجھے قتل کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔
बाअसर मुलजिमान के गांव में और मेरे घर पर अंधाधुंध फायरिंग के बाद पुलिस बेबस दिखाई दे रही है। 2-3 दिन गुजरने के बावजूद FIR तक दर्ज हो सकी। अहले इलाका गेपको मुलाजिम का वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से वाक़े का नोटिस लेने का मुतालबा। मियांवारी की तहसील पिपला में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हाफिज वाला के ताजिर को कत्ल कर दिया। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। पिपला के नवाही इलाके हाफिज वाला में नामालूम अफराद ने कपड़े के ताजिर को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। कत्ल होने वाले की शनाख्त गुलाम मुहय्यद्दीन के नाम से हुई है। नाश को पोस्टमार्टम के लिए THQ पिपला मुंतकिल कर दिया गया। कत्ल की वजह मालूम न हो सकी। पिपला पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। अंजुमन ताजरान हाफिज वाला ने शटडाउन हड़ताल करके मुलजिम को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। मीरपुर खास से रिपोर्ट कर रहे हैं मुबशिर लुकमान। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ज़िला मीरपुर खास सदर ज़िले कन्वीनर GDA मुबारक अली मेहर ने GDA फंक्शनल के ज़िले रहनुमा फारूक अहमद लगारी की जानिब से रखी गई कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की और UC ओल्ड मीरपुर की मुख्तलिफ बरादरियों जिसमें झंझी बरादरी, पनहोर बरादरी, खासकली बरादरी, मगवार बरादरी, भेल बरादरी, कोल्ही बरादरी, रंगरियो बरादरी समेत मुख्तलिफ बरादरियों के मुअज़्ज़िज़ीन से मुखातिब करते हुए ज़िले सदर मुबारक अली मेहर का कहना था कि साबिका करप्ट हुकूमत जो सिंध पर 15 सालों से काबिज थी, जिसने सारे महकमों में रिकॉर्ड करप्शन की मगर आवाम को कोई सहूलियात ना दे सकी और सिंध को मजीद तबाहली का मरकज़ बना दिया। खिताब करते हुए मुबारक अली मेहर का मजीद कहना था कि मीरपुर खास की आवाम तैयार रहे। हम पीर साहब पगारा के मिशन मुत्तहिद सिंध मुत्तहिद पाकिस्तान पर गामजन है और इंशाअल्लाह आने वाले आम इंतखाबात में सिंध की आवाम को लूटने वालों का कड़ा एहतसाब भी करेंगे और मुखालिफिन को शिकस्त जोचार भी करेंगे। अपने हल्के की मुख्तलिफ बिरादरियों को खिताब करते हुए फारूक अहमद लगारी का कहना था कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त GDA का है और इंशाअल्लाह हम सब पीर साहब पगारा की क़यादत में सिंध समेत पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। गुज़श्ता हुकूमतों ने सिंध की आवाम के हकूक़ गज़ब किए और इसके साथ साथ सबको हमने मिलकर अपने हलकों से बाहर निकालना है और पीर साहब पगारा के नामज़द उम्मीदवारों को वोट देकर अगले इलेक्शन में कामयाब करवाना है। इस मौके पर अवाम ने भेज बगारा के भरपूर नारे लगाए और आने वाले इंतखाबात में GDA का भरपूर साथ देने का अहद किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ज़िला मीरपुर खास में पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ज़िला मीरपुर खास सदर ज़िले कन्वीनर GDA मुबारक अली मेहर ने GDA फंक्शनल के ज़िला रहनुमा फारूक अहमद लगारी की जानिब से रखी गई कॉर्नर मीटिंग में शिरकत की और UC ओल्ड मीरपुर के मुख्तलिफ बरादरियों जिसमें झंझी बरादरी, पनहोर बरादरी, खासकली बरादरी, मगवार बरादरी, भेल बरादरी भी शामिल थी। अपने हल्के के मुख्तलिफ बरादरियों को खिताब करते हुए फारूक अहमद लगारी का कहना था कि इंशाअल्लाह आने वाला वक्त GDA का है। अहमदपुर शर्किया से परवेज बशीर कम्बा की रिपोर्ट देखिए। दीवान ग्रुप को बड़ा धचका। अहमदपुर बार के सीनियर कानूनदान खालिद महमूद आवान ने अपने साथियों समेत उम्मीदवार सदारत नजर असलम ग्रुप की हिमायत का ऐलान कर दिया। नजर असलम ग्रुप की कामयाबी यकीनी हो गई। बार एसोसिएशन के होने वाले इलेक्शन के मुताबिक पंजाब के दीगर तहसीलों की तरह तहसील बार अहमदपुर शर्किया साल 2024 जनवरी में मुनाकिद होंगे। ओहदा सदारत, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदों के उम्मीदवारों ने इंतखाबी मुहिम चलाई हुई है। इंतखाबात के इनेकाद से कबल ओहदा सदारत नजर असलम, जनरल सेक्रेटरी चौधरी फारूक अजीज़ और दीगर ओहदेदारों की कामयाबी यकीनी हो गई है, क्योंकि वकला के एक बड़े मुतहरिक ग्रुप के सीनियर कानूनदान खालिद महमूद आवान, मोहम्मद इकबाल शाही ने अपने दर्जनों साथियों समेत दीवान ग्रुप से राहें जुदा करके नजर असलम ग्रुप की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया, जो कि दीवान ग्रुप को जोरदार धचका मिला है। नजर असलम और ग्रुप की कामयाबी का पेश खैमा है। सीनियर कानूनदान खालिद महमूद आवान ने उम्मीदवार बराए सदारत नजर असलम उम्मीदवार जनरल सेक्रेटरी चौधरी फारूक अजीज, अशरफ तरीन, हाफिज मुजफ्फर करीम, मुगल सरदार मोहम्मद मक्की, गजनफर चौहान, इजाज आरबी, सईद डाहर, जफर अली के हमरा इस अमर का इजहार किया कि वह हर सतह पर नजर असलम ग्रुप की खुलकर सपोर्ट करेंगे और उन्हें हालिया इंतखाबात में कामयाब करवाकर सुरखरू होंगे। अहमदपुर शर्किया खबर शामिल करते हैं। परवेज बशीर कम्बो की रिपोर्ट के मुताबिक कुरान मजीद ही एक ऐसी मुक़द्दस किताब है जो हमारी बख्शिश का जरिया है और इसके पढ़ने से हमारी दुनिया और हमारी आखिरत संवर सकती है और हम जो दुनिया में बोएंगे वो आखिरत में काटेंगे। अहमदपुर शर्किया सिविल कोर्ट में तैनात स्टेनोग्राफर एजाज अहमद का कम उम्र बेटा हाफिज मोहम्मद अहमद, जो कि एक कम उम्री में भी अपनी मिसाल आप है। आज के जदीद दौर में अल्लाह की तरफ से दी हुई जहानत और हिकमत से जदीद
जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए कंप्यूटराइज्ड अंदरून और बैरून मुल्क शहरियों को ऑनलाइन क्लासेस नादरा पढ़ाकर अपने वालिदैन, असातिज़ा कराम और रिश्तेदारों दोस्तों के दिल जीत लिए। इस दौरान जब मीडिया से गुफ्तगू की तो मोहम्मद अहमद ने कहा, ये सब मेरे वालिदैन की मेहनत और अल्लाह की तरफ से दी हुई अनायत, इनकी नेमतों का मुझे सला मिला है कि मैं कम उम्री में कुरान मजीद पढ़ाता हूँ और मैं दुआ करता हूँ कि हर वक्त मैं अल्लाह की याद में अपना वक्त गुजारूँ। उनका कहना था कि कुरान मजीद ही ऐसी मुक़द्दस किताब है जो अपनी बख्शिश का जरिया है और हमारी आखिरत भी संवर सकती है। उनका कहना था कि दुनिया आखिरत की खेती है और जो कुछ भी इंसान दुनिया में बोएगा वो आखिरत में काटेगा, और कुरान मजीद ही एक ऐसी किताब है जो हमारी निजात का आखिरत में जरिया बनेगी। मजीद उनका कहना था कि वालिदैन अपने बच्चों को कुरान मजीद की तालीम जरूर दिलवाएं। पाकपतन से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे साहिवाल डिविजनल ब्यूरो चीफ BRN न्यूज सैयद मखदूम हुसैन नकवी। मेहनती निडर पुलिस ऑफिसर ASI सैयद वासिफ अता की मेहनत कारकर्दगी बिल आखिर रंग ले आई। पंजाब पुलिस में ASI कांस्टेबल भर्ती होने वाले अपनी कारकर्दगी से हेड कांस्टेबल और अब ASI की पोस्ट पर प्रमोट हो गए। सैयद वासिफ अता को DPO पाकपतन तारिक वलायत और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर SSP मैडम शाहिदा नौरीन ने अपने हाथों से स्टार बैच कांधों पर लगाए। इस मौके पर ASI सैयद वासिफ अता ने कहा कि सबसे पहले तो वो अल्लाह ताला की पाक ज़ात और अहले बैत मोहम्मद अलैहिम की करीमी का शुक्र अदा करते हैं। इसके बाद अपने वालिदैन, बहन भाई, अपनी फैमिली, करीबी रिश्तेदार और दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी कामयाबी के लिए दुआएं की। उन्होंने कहा कि सब अजीज़ व क़ारिब से इल्तिजा है कि जो जिम्मेदारी मुझ पर दी गई है इसे सरअंजाम देने में किसी किस्म की कोताही सरजद न हो। पीर महल इसरार फिलिंग स्टेशन संधरियाना वाली का इफ्तिताह साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी, पीर सैयद इब्रार हुसैन शाह, सैयद कुतुब अली शाह अल मारूफ अली बाबा ने अपने दस्ते मुबारक से किया। पीर महल इसरार फिलिंग स्टेशन संधरियाना वाली का इफ्तिताह सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मखदूमज़ादा पीर सैयद इब्रार हुसैन शाह ने अपने दस्ते मुबारक से किया। साबिक MNA मुल्तान सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। साबिक MPA PP 123 पीर सैयद कुतुब अली शाह अल मारूफ अली बाबा, साबिक चेयरमैन राना वारिस अली खान, राना कमरुल हक, डायरेक्टर एलाइट स्कूल पीर महल ने आने वाले मेहमानों को वेलकम किया। इलाके भर से सियासी, समाजी, कारोबारी शख्सियात ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौके पर मखदूमज़ादा पीर सैयद इब्रार हुसैन शाह सज्जादा नशीन दरबार आलिया कुतबिया संधियाना वाली ने कामयाबी के लिए दुआ फरमाई। सफ्तर इकबाल मलोका, नुमाइंदा BRN न्यूज पीर महल। ट्रैफिक पुलिस पंजाब 3 नवंबर 2023 तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस पंजाब ने एक ही दिन में 74,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी करके तारीख रकम कर दी। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग ने ट्रैफिक हेडक्वार्टर्स में मॉनिटरिंग सेंटर कायम कर दिया। मॉनिटरिंग सेंटर के कायम के बाद ड्राइविंग लाइसेंस और चालान की कारकर्दगी का जायजा लम्हा बलम्हा हासिल किया जा रहा है। मॉनिटरिंग सेंटर की सरपरस्ती एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारान बेग खुद कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज ट्रैफिक पुलिस ने पंजाब भर में 74,000 से ज्यादा ड्राइविंग लर्नर परमिट जारी किए। लाहौर में 24,000 से ज्यादा लाइसेंस जारी करके पंजाब के तमाम अजला से बाजी ले गया। एडिशनल IG ट्रैफिक पंजाब मिर्जा फारान बेग की CTO लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मुस्तनद सर फेरोज को शाबाश। पंजाब के दूसरे अजला में भी मुख्तलिफ काम और मेहनत से जारी है। कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के बाद ड्राइविंग सेंटर्स में बहुत रश है। एडिशनल IG ट्रैफिक मिर्जा फारान बेग का ऐसा कहना था। मजीद कहा, ट्रैफिक पुलिस पंजाब पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने फराइज सर अंजाम दे रही है। ट्रैफिक पुलिस ने रश के मद्देनजर लाइसेंसिंग सेंटर्स में स्टाफ की तादाद के साथ साथ एक्स्ट्रा ड्यूटी टाइम भी बढ़ा दिया। ट्रैफिक पुलिस पंजाब के अवाम को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करेगी। टंडोवाला यार से रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद कायम खानी। पीपल्स स्कूल टंडोवाला यार की जानिब से सकाफत के मौके पर रंगारंग सकाफती मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तुलबा और तालिबात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के ताउन और तालीम फाउंडेशन और MDC के ज़ेर निगरानी पीपल्स स्कूल टंडोवाला यार में रंगारंग सकाफती मेले का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा ने बढ़ चढ़ कर जोशो खरूज से हिस्सा लिया और सिंधी सकाफत के रंगों को एक जगह समो दिया। सकाफती मेले में तलबा ने रंगारंग सकाफती स्टॉल भी लगाए और मुख्तलिफ गीतों पर टैबलोस और लोक कहानियों से
से सिंधी सकाफत को उजागर करके तकरीब को यादगार बना दिया। इस मौके पर स्कूल की प्रिंसिपल शाहीन अब्दुल अजीज ने अपने खिताब से कहा कि सिंध की सकाफत हज़ारों साल कदीमी सकाफत है। सकाफती दिन हम बड़े जोशो जज्बे के साथ मनाते हैं। सिंधी कल्चर प्यार, अमन, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स देता है और अपने तलबा और तालिबात को शानदार कारकर्दगी पेश करने पर मुबारकबाद देती हूँ। शामिल करेंगे चीचा वतनी से पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक वजीर आजम पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ के साबिक MPA चौधरी शहजाद सईद चीमा की रिहाइश गाह चीचा वतनी आमद। मजीद इस मौका पर उनका क्या कहना था, जानिए यूनुस शहबाजी की इस रिपोर्ट में। जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान राजा परवेज अशरफ की चीचा वतनी पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब के सेक्रेटरी इत्तलात साबिक MPA चौधरी शहजाद सईद चीमा की रहायश गाह आमद। वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था, देखिए, पंजाब को अक्सरियत हासिल करने की तो मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन पंजाब में इस दफ़ा पीपल्स पार्टी की पोजीशन जो है वो पहले 18 के इलेक्शन से या 13 के इलेक्शन से बहुत बेहतर और वाज़ेह आपको नज़र आएगी। और इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक बात तो बिल्कुल साफ़ और अयां है कि इस वक्त मैदान में जितनी पार्टीज़ भी मौजूद हैं, आवाम के लिए अगर किसी में अट्रैक्शन है, आवाम की भलाई के लिए किसी ने काम किया है, जो अवामी जमात है, जो अवामी खिदमत पे यकीन रखती है, वो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और मैं समझता हूँ इसीलिए इसी वजह से लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर आप ये समझते हैं ना कि वो जो बड़े इलेक्टेबल्स की जो बात करते हैं, अब दौर चला गया, अब इलेक्टेबल मार खा जाते हैं। सच्ची बात में आपने देखा कि 20 इलेक्टेबल हमने तैयार किए थे पंजाब में और सारी जमातों ने उसको मदद की थी, वो 20 के 20 मार खा गए थे। उनकी जमानतें जब्त हो गई। एक्सीलेंट विजन पब्लिक हाई स्कूल दौलतपुर में सिंध का सकाफती दिन मनाने के लिए एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी मैडम अफशीन अमजद खानजादा, स्कूल के प्रिंसिपल मारिया शब्बीर सोमरो, मैडम इरम हयात खानजादा कर रही थी। मेहमान खुसूसी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दौलतपुर की प्रिंसिपल अमजद हयात खानजादा, टाउन कमेटी दौलतपुर के चेयरमैन हशमत दाद खानजादा, गवर्नमेंट हाई स्कूल के टीचरों गुल मोहम्मद ओठो, जाहिद हुसैन सोमरो, रियाज उनड़, हुमैर सोमरो, अरबाब अली दहड़ी, इसके साथ साथ अब्दुल हई भुट्टो, हैदर बख्श शना, अब्दुल वहीद ढारी, टीचर मैडम सुगरा और इसके साथ साथ गवर्नमेंट मैन प्राइमरी स्कूल दौलतपुर के हेड मास्टर जुबैर लाखो, नियाज अली उनड़, सगा दौलतपुर के जनरल सेक्रेटरी सलीम रजा सोलंगी समेत दीगर मेहमानों ने स्कूल का विजिट किया और एक्सीलेंट विजन पब्लिक स्कूल दौलतपुर के तालिब इल्मों की मेहनत से बनाए गए मॉडल को खूब सराहा। इस मौके पर तालिबात और तालिब इल्मों ने सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए टैब्लो पेश किए और कौमी गीतों पर रक्स पेश किया गया, जबकि स्कूल इंतजामिया की जानिब से आने वाले मेहमानों को सिंध की सकाफत, अजरक और टोपी के तोहफे पेश किए गए। समारोह में सकाफती सगड़ मैच कचरी में सारे सकाफती रंग शामिल हो गए। समारोह से हमारे रिपोर्टर नाज फकीर शहानी की रिपोर्ट देखी। समारोह कम्युनिटी ग्रुप समारोह की जानिब से सिविल सोसाइटी सपोर्ट प्रोग्राम के तावन से समारोह का करीब नाज फकीर शहानी की मेजबानी में सिंधी सकाफत के हवाले से एक शानदार और खूबसूरत सुगड़ मच कचहरी का प्रोग्राम किया गया। सकाफती सुगड़ मच कचहरी में सारे सकाफती रंग शामिल थे। कम्युनिटी ग्रुप समारोह के सदर रोशन बहरानी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। सुगड़ मच कचहरी में पीर हमाद जान सरहंदी ने शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी पढ़ने के साथ भिटाई का पैगाम बयान करते हुए कहा कि हमारी सकाफत सिर्फ टोपी, अजरक, तलवार और कुल्हाड़ी नहीं, बल्कि लतीफ़ ने हमारी सकाफत को अमन, भाईचारे, रवादारी और मोहब्बत, मेहमान नवाजी का नाम दिया है। जैसा कि आज हम सब इस सुगड़ मच कचहरी में बगैर किसी ज़ात पात, मज़हब या ज़बान के फ़र्क के साथ बैठे हैं और यही हमारी सकाफत है। फ़कीर साइंदाद सांद ने मच कचहरी में सिंध के कदीम साज बीन और अलगोज़े पर मुख्तलिफ धुनें बजाकर दाद हासिल की। सिंध के बेहतरीन सुगड़ मोहम्मद सालेह आमदानी ने सिंधी डोर, बैत और किस्से सुनाकर कचहरी को महजूज किया, जबकि अहमद खान सजरानी, अयूब शानी और सालेह आमदानी ने तिरोली और गुजारत पर तबाह आजमाई करते हुए सुगड़ मच कचहरी में अपना फन पेश किया।
गुलकार फकीर गुलाम हैदर कपरी ने शाह अब्दुल लतीफ भिकाई की वाई और सिंध के गीत सुनाकर हाज़रीन को रक्स करने पर मजबूर कर दिया। CSSP के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर और मरूफ मुसन्निफ मीर हसन आरिसर ने खिताब करते हुए कहा कि ऐसी सुगड़ मच कचहरी हमारी कदीम सकाफत है। उनके ज़रिए हम मोहब्बत, अमन, भाईचारे और रवादारी का पैगाम दे सकते हैं। सिंधी अदबी संगत के मरकज़ी रहनुमा खूबसूरत शायर खताई थेबे ने जवानी और नौजवान शायर मुर्तज़ा राहमू ने तुम तो चाहती हो जैसे नज़म पढ़कर सुगड़ मच कचहरी में बैठे लोगों को खूब गरमाए। लाल सामारवी, हरलाल अमर, वसीम खोसो, डेवन लोहार, नूर मोहम्मद हसास खासकेली, अकबर जमजम, लूनर प्रेमी व दीगर शोरा ने अपने अशार सुनाए। सामार टाउन कमेटी के वाइस चेयरमैन नवल राय महेश्वरी, डॉक्टर अजीज़ कुंबर, अमानुल्लाह बूटा, डॉक्टर काशिफ अजीज़ व दीगर ने मच कचहरी को सराहते हुए कहा कि आज हम इस सुगड़ मच कचहरी को देखकर महसूस कर सकते हैं कि सिंध अमन और भाईचारे की सरजमीन है और हमारी सिंधी सकाफत बहुत मजबूत और मशहूर है। जबकि CSSP के शकील चांडियो ने कहा कि कम्युनिटी ग्रुप समारोह के दोस्तों नाज फकीर शानी और रोशन बहरानी की मेज़बानी में सुगड़ मच कचहरी बहुत ज़बरदस्त है। ये एक जिंदा मिसाल है जिसमें हमें सिंध की सकाफत का हर रंग देखने को मिला है। सहाफ़ियों समेत मकतबा फ़िक्र के लोगों और मेहमानों ने सुगड़ मच कचहरी में शिरकत की और कामयाब मच कचहरी पर मुबारकबाद दी। सांगड़ से सिटी रिपोर्टर। सांगड़ संछोरो थाने की हुदूद पुलिस चौकी पर सांगड़ मजिस्ट्रेट 3 अमराल ने छापा मारकर बेगुनाह हिरासत में ले गए 4 अफराद बाजियाब कराए। सांगड़ में मोहम्मद अली महर की दरख्वास्त पर कार्रवाई अमल में लाई गई। बाजियाब होने वालों में इम्तियाज, शहजाद, शहरयार और शहबाज शामिल हैं। ड्यूटी पर मौजूद पुलिस एहलकार ने वाक़े से लाइलमी का इज़हार किया। मंगली थाने की हुदूद गजरी पुलिस मोबाइल में लेकर आई थी। इसके साथ साथ हम घर में सोए हुए थे। पुलिस ने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए 4 अफराद को उठाकर ले गई। हमारे खिलाफ कोई भी FIR दर्ज नहीं है, हम बेगुनाह हैं, मुतासरा अफराद की जानिब से ऐसा कहा गया। मजिस्ट्रेट अमरलाल ने इंक्वायरी के लिए गजरी और संछोरो पुलिस को सांगड़ कोर्ट तलब कर लिया। सिंध की सकाफत को उजागर करने के लिए चुटियारी के स्कूल में तकरीब का इनकाद किया गया। सांगड़ के नवाही इलाके चुटियारी में सिंध फाउंडेशन के तहत चलने वाले शुमाइला मॉडल स्कूल में सकाफती दिन की मुनासिबत से भरपूर तकरीब का इनकाद किया गया। तकरीब में बच्चों की परफॉर्मेंस ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। स्कूल के बच्चे सिंधी लिबास से तन किए हुए थे और सिंधी टोपी अजरक पहनकर सिंध से अपनी मोहब्बत का इजहार करते नजर आए। बच्चों ने सिंध गीतों पर खूब रक्स किया और टैबलोज भी पेश किए। शुमाइला अराय बादल जिंजुनेजो और हुसैन अराय, खादिम हुसैन शाह, सईद अली हुसैन शाह और दीगर ने कहा कि सिंध की सकाफत हजारों से कदीम है, जिसको हर साल भरपूर अंदाज में मनाने की तैयारियां की जाती हैं। जो कौमें आने वाले वक्त में और सकाफत को याद रखती हैं वो तरक्की करती हैं। हमें बहुत खुशी हुई कि एक दही इलाके के स्कूल में जहां बच्चों ने जिस तरीके से इतनी मेहनत की और इस प्रोग्राम को 4 चांद लगाए, अगर उन बच्चों को मजीद हौसला अफजाई की जाए तो ये बच्चे रोशन मुस्तकबिल के मेहमान बन सकते हैं। सिंध की सकाफत हजारों सालों पर मुहित है और गुज़श्ता कई रोज से मुखातिब और मुख्तलिफ स्कूलों में सिंध की सकाफत का दिन मनाया जा रहा है। स्कूलों में मुनाकिद तकरीबात से न सिर्फ तहजीब और सकाफत जिंदा रहती है बल्कि बच्चों में शऊर और जज्बा भी पैदा होता है। खबर शामिल करते हैं शुजाबाद से। अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक रीजनल पुलिस ऑफिसर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सुहेल चौधरी ने तरक्की पाने वाले पुलिस अफसरान को बैच लगाए। ADIG मंसूर आलम भी मौजूद थे। रीजन के 14 जूनियर क्लर्क्स को सीनियर क्लर्क्स के ओहदे पर प्रमोट कर दिया। तरक्की से जिम्मेदारियों में इजाफा हो जाता है। मुझे उम्मीद है ये पुलिस अफसरान ईमानदारी और लगन से फराइज अंजाम देंगे। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मोहम्मद इकबाल, एहसन शाह, मोहम्मद इकबाल जावेद शामिल, जबकि मिनिस्ट्रियल स्टाफ व जूनियर क्लर्क स्केल 11 से स्केल 14 सीनियर क्लर्क के ओहदे पर तरक्की पाने वालों में मोहम्मद खालिद उस्मानी, तनवीर अहमद, अल फैसल इमरान, मोहम्मद नईम शामिल हैं। राशिद अली, फयाज सल्लोथर, हसन अब्बास, मोहम्मद इरफान, कामरान गिलानी भी शामिल थे। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से अपने नुमाइंदे एहसान करीम की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मियां उस्मान अली का जिला में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल के सामने जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने तामीराती काम की रफ्तार, इस्तेमाल होने वाले मटीरियल के मयार का जायजा लिया। एक्सियन बिल्डिंग मोहम्मद रमजान, डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट अनम हफीज ने डिप्टी कमिश्नर को तरक्याती मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। तामीराती काम में इस्तेमाल होने वाले मटीरियल का खास ख्याल रखा जाए।
तरक्याती कामों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने तुर्की अस्पताल के सामने शजरकारी पॉइंट का दौरा किया। फॉरेस्ट ऑफिसर मोहम्मद शफकत ने डिप्टी कमिश्नर को शजरकारी के बारे में ब्रीफिंग दी। मंडी बहाउद्दीन वज़ीर आला पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर गुजरांवाला की खुसूसी हिदायत पर ज़िला मंडी बहाउद्दीन की खस्ता हाल और अरसा-दराज से नज़रअंदाज रहने वाली मज़ीद 11 सड़कों के असर नौ तामीर, मुरम्मत और बहाली की मंजूरी दे दी। ये तरक्याती स्कीमें ज़िला कौंसिल और म्यूनसिपल कमेटी के फंड से तामीर की जाएंगी। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मारत और DPO रजा सफ्तर काज़मी की मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। मंडी बहाउद्दीन डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रजा सफ्तर काज़मी का मीडिया नुमाइंदगान से बातचीत में कहना था, हुकूमत पंजाब की जानिब से जिला के 15 सड़कों की मंजूरी दी गई, जिनकी कुल मालियत तकरीबन 1 अरब रुपए है। डिप्टी कमिश्नर का कहना था, मुफाद आमा के पेश नज़र इन सड़कों की तामीर और तौसी का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। टेंडर्स के लिए अखबार इश्तिहार दे दिया गया और मजीद मेगा प्रोजेक्ट्स भी जल्द शुरू किए जाएंगे। मजीद कहना था, जिला भर के दीगर सड़कों पर पेच वर्क्स, लेन मार्किंग, स्ट्रीट लाइट्स, किट आइज और साइन बोर्ड्स नस्ब करने का सिलसिला भी जारी है। अहलियान मंडी बहाउद्दीन की जानिब से डिप्टी कमिश्नर की काविशों को खूब सराहा गया।